Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So in this reading we are going to get to know universe's messages एंड गाइडेंस फॉर यू. जो भी यूनिवर्स आपको गाइडेंस मैसेज देना चाहता है अभी के लिए आपके करंट एनर्जीज़ के बेसिस पर, आपके करंट और फ्यूचर लाइफ के लिए जो मैसेजेस गाइडेंस है वो आपको इस रीडिंग में मिलेंगे. एंड वी आर गोना गेट टू नो व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग राइट नाउ. सो इस बारे में रीडिंग है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर प्रेडिक्शन. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have radiance, pile 2 power, pile 3 we have voyage. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो एक कार्ड आपने पिक करना. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन कार्ड्स का पास है, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपके लिए ग्लो कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28th को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हो, अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. तो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the Radiance card number 42 or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. What you need to know right now, pile number 1. क्या अभी आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स क्या बताना चाहता है जो अभी के लिए बहुत ज़रूरी है? What you need to know right now, pile number 1. Okay. We have King of Wands. The universe says that someone or something is really someone is really attracted towards you. And you are getting into the King of Wands energy. Like you are becoming very, very attractive. You are that person who is glowing in the room and everybody is looking at you. And you're going to roar now. Just like this line, you're going to roar. Basically, you're going to speak up now. This is the time to speak up. Maybe there were some people around you जो नहीं चाहते थे कि आप बोले, नहीं चाहते थे कि आप लाइमलाइट में आएँ या नहीं चाहते थे कि आप जो है कम्युनिकेट करें, बिकॉज दे न्यू कि अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो फिर दे आर गॉन फॉर गुड. So King of Wands here shows me that you are getting into your power, you're stepping into your power, you're going to get the limelight now, and there are people getting attracted towards you. There is definitely someone who is also stalking you, someone who is very much attracted to your fire energy, और शायद आपने fiery element किसी को पहले अपना दिखाया भी नहीं था, but this person just felt that you are such a fiery person. You have a strong anger. Again, Ardra nakshatra can be prominent in your chart. Ardra occurs in Gemini, एक air sign में होता है, but Ardra is about the storm. It's about the fierce form of Rudra. Also Mula nakshatra. Mula can also be prominent. Mula is a nakshatra which occurs in the sign of Sagittarius. Or Mula is about the goddess Kali, even Durga. So it's about कि अब जो है you have to transform. अब जो है the storm has to come.
ऑल राइट. अभी जो है यूनिवर्स सेज यू नीड टू एक्ट. You can't just see injustice happening. You have to take a stand for yourself and for other people. We have 4 of Pentacles. मतलब आपने बहुत ट्राई करा है to keep calm, all right, but keeping calm करने से चीज़ें नहीं आगे बढ़ सकती हैं. So you have realized that at times आपको डंडा उठाना पड़ता है, at times आपको जो है थोड़ा violent होना पड़ता है. Not really like इंटरनली यू हैव टू बी वॉयलेंट. आपने अपने दिमाग का सोच के नहीं कर देना है, बट इट शोज दैट यू हैव टू लाइक यू हैव टू शो दैट आई एम अ वॉयलेंट पर्सन. सो अगर मुझसे पंगा लिया देन यू आर गॉन फॉर गुड. सो मेंटली यू हैव टू स्टे काम लाइक 4 of Pentacles. फिजिकली और दुनिया में यू हैव टू act like a storm. You have to act like this lion who is roaring. All right, but yeah, 4 of Pentacles shows that you have tried to keep your calm, but yeah, उस calmness से कुछ हुआ नहीं, उस शांति से कुछ हुआ नहीं, और ही अशांति फैल गई. All right, you were trying to work out your ways in a messy situations, but you have realized that I need to get things sorted, whether I do it violently or whatever, but I need to get things sorted. We have the Judgment card. You were afraid वैसे. You were afraid कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे if I act in certain way. But you know what? लोग कुछ नहीं सोचेंगे. लोग in fact thankful होंगे. There are going to be people who are going to be very thankful that you took the stand and they felt that now they are also going to be saved due to you. So there are going to be people who will understand you, who will appreciate you, and वो आपके support में भी आएंगे. But judgment here does shows me that you were afraid how people are going to judge you. Maybe आपका जो image था society में आज तक वो ये था दूसरों के सामने कि you are a soft person, you are a gentle soul, you love peace. So that was you. बट अब पानी सर से कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है. तो नाउ यू हैव टू एक्ट वॉयलेंटली. आपको ज़ोर से आवाज़ करके आपको बात करनी पड़ेगी. यू हैव टू कीप योर पॉइंट इन फ्रंट एंड इनजस्टिस को आपको ख़त्म करना पड़ेगा खुद. We have the 7 of Swords here. 7 of Swords energy here shows कि यहाँ सर्कस चल रहा है मेरे जीवन में, और मुझे भी सर्कस का फूल बनना पड़ जाएगा अगर मैंने कोई स्टेप नहीं लिया. तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन ये है. यू हैव टू टेक अ स्टैंड. यू हैव टू बिकम द बैड बॉय और अ बैड गर्ल. यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट यू हैव टू टेक स्टैंड एंड यू हैव टू गो वाइल्ड. You have to go wild now. And we, like in the end of the deck, we have the energy of the Magician. The Magician here shows that you have each and every resource to create something to create something beautiful, to create a miracle. ऑलराइट, जो आप करेंगे वो बहुत वंडरफुल होने वाला है, बिकॉज आपके पास ईच एंड एवरी चीज़ है जिससे आप कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे. एंड आई डू फील दैट देयर इज समबडी हु इज़ रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. अगेन आई डोंट सी अ रोमांटिक रिलेशनशिप टू बी ऑनेस्ट. मे बी फ्यूचर में हो सकता है, बट राइट नाउ व्हाट आई सी इज दैट देयर इज डेफिनेटली समवन ऑपोजिट जेंडर से हु इज़ रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. एंड जैसे वी सी द सनफ्लावर एज वेल हेयर. सनफ्लावर का मुँह उधर ही होता है जहाँ पर सन होता है. So you are the sun for them and they are the sunflower. तो जहाँ पर भी आप होते हैं या जहाँ पर भी आप यूजुअली होते हैं वहाँ पर इस पर्सन की नज़र जाती है. they want to get to know you, they want to be a part of your life, all right, because they want to see you. और जब आप उस जगह पर नहीं होते they also miss you. All right, and again with the Magician, this person can be from your workplace or from your university, college. जहाँ पर भी आप मतलब हर रोज़ जाते हो वहाँ पर ही होते हैं ये person. All right, and they themselves can be very beautiful, themselves can be very handsome. They may even have placements, they can have their sun, moon or Atma Karak planet in the sign of Leo or Sagittarius.
all right, they themselves may look very regal and royal. You yourself can be a very regal royal male or female. If you're a male watching this reading, you may have Mars in Leo. If you're a female watching this reading, you will have Venus in Leo, जो कि यही शो करता है that you are a very regal royal female. The way you walk, the way you talk, the way you dress up, people feel कि आप एक बड़े regal royal background से आते हैं. Reality can be very different. You may come from a very humble background, but लोग आपके बारे में ये सोचते हैं. And somehow जब आप इस person को भी देखते हैं, आपको भी लगता है that this is a very regal royal kind of a person. The way they talk, the way they walk, the way they dress up, the way they express themselves, it's very very regal and royal. And maybe this person is also right now traveling, या ये person आजकल बहुत ज़्यादा travel कर रहे हैं. This can even happen, but they are the people who will have great interest towards music and dance, and they are the people who are gonna be in your favor somehow. Alright, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है. Something more if we can get. और यूनिवर्स क्या बताना चाहता है आपको, क्या और मैसेज देना चाहता है. सो वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. इट्स अबाउट पैशन. इट्स अबाउट पैशन इज कमिंग इन योर लाइफ. यू आर बिकमिंग वेरी पैशनेट. यू आर बिकमिंग दिस पर्सन जो थोड़ा सनकी भी हो रहा है. मतलब आप अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो. बहुत पैशनेटली वर्क करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो. एंड इनफैक्ट कलर्स ऐड कर रहे हो अपनी लाइफ में. आपको सडनली कलर्स बहुत अच्छे लगने लगेंगे. रेड, येलो, पिंक, मतलब ब्राइट कलर्स जो है आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे. इनफैक्ट आप अपने करियर को भी कलरफुल बनाने वाले हो. करियर में बहुत पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हो. फिर स्टूडेंट वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपका मन लगेगा अपने एजुकेशन में. आप अच्छा पढ़ पाएंगे, लॉन्ग आवर्स तक पढ़ पाएंगे. आपका जो फोकस है वो आप अच्छा कर पाएंगे. और इफ़ यू आर समवन जो जॉब में है, बिजनेस में है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैशनेट आप नज़र आ रहे हैं. मतलब दिल लग रहा है आपका अपने काम में, ऐसा यहाँ पर दिखता है. एंड समहाउ यू कैन बिकम द लीडर आफ्टर यू बीइंग द लायन, यू बिकम द लीडर. वैसे भी यहाँ पर रेडियंस का कार्ड आपने पिक करा है, या जैसे भी आपने स्पाइल को पिक करा है, द रेडियंस कार्ड हेयर शोज मी दैट यू आर द राइजिंग फीनिक्स. अगेन यहाँ पर ऑरेंज टोन्स, फायरी टोन्स यहाँ पर है. वी ऑल्सो हैव ऑफ कोर्स द फायर एलिमेंट. तो वही है कि आपका फायर बाहर निकल रहा है. फायर is about passion, it's about attraction, it's about डाइजेशन एज वेल. सो आपका डाइजेशन यहाँ पर इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है. बट ऑल्सो एंगर आपके अंदर बढ़ सकता है, या उमंग उत्साह भी आपके अंदर बढ़ सकता है. मेनी ऑफ यू सडनली विल हैव लॉट ऑफ एनर्जी कि आप जिम में जाना शुरू कर दोगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे, कुछ अपनी फिजिकल एनर्जी को एक्सर्ट करने की कोशिश करोगे. इससे आपका एंगर एग्रेशन भी कम होता है. बट आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन यहाँ पर नज़र आ रहा है. उस पैशन को आप अपने करियर में यूटिलाइज करने वाले हैं. थ्रू दिस यू आर गेटिंग नेम एंड फेम. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपको अपने स्कूल कॉलेज में जो है कोई कंपटीशन होगा, और उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें आप जीतेंगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. और जब आप उस कंपटीशन को उसमें पार्टिसिपेट करते हो, लोग आपको परफॉर्म करते हुए देखते हैं, आपका एक इमेज ट्रांसफॉर्म होता है सोसाइटी में, इमेज ट्रांसफॉर्म होता है अपने पीयर्स में. And suddenly you start to get the respect and regard. Suddenly you will notice कि लोग आपको नोटिस करना शुरू करते हैं. अगर आप अगेन जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तब भी कुछ ऐसा कंपटीशन आ सकता है जिसको आप विन करेंगे. बट बिफोर विनिंग इट, यू आर गोना परफॉर्म समथिंग, एंड देन ऑफ कोर्स यू आर गोना विन इट. सो व्हेन व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग, अदर्स आर गोना नोटिस यू, अदर्स आर गोना सी यू, अदर्स आर गोना जज यू, एंड दे वुड वांट यू टू बी द लीडर. दे वुड वांट कि आप बहुत अच्छा करें, तो आपको जीतना चाहिए. एंड आपके जो लोग आपसे जेलस थे, जो आपसे नेगेटिव वे में ऑब्सेस्ड थे, जेलस थे, उनको मुंह तोड़ जवाब आप दे पाते हैं. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. उनको जीवन से आप हटा पाते हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगेन मैजिशियन का कार्ड है. समथिंग मरेक्युलस, समथिंग जो है ब्यूटिफुल यू आर गोना परफॉर्म, बिकॉज यू हैव ईच एंड एवरी एलिमेंट टू डू सो. देन वी हैव द नाइट ऑफ पेनिकल्स. नाइट ऑफ पेनिकल्स ये शो करता है, इट्स अ सेट्रेनियन कार्ड. नाइट ऑफ पेनिकल्स इट शोज दैट जैसे यूजुअली नाइट ऑफ पेनिकल्स में जो घोड़ा होता है वो रुका हुआ होता है, चीज़ें मतलब मूवमेंट में नहीं होती. बट हेयर वी सी द हॉर्स इज एक्चुअली मूविंग. सो वी सी कि आपने बहुत कुछ सहन करा है. इट शोज़ कि आपने जो है बहुत आप हम्बल भी रहे हैं, आपने जी हजूरी भी करी है. हाँ जी, जो आप कहेंगे कर लेंगे, ऐसे भी आपने बहुत करा है. आपने पीपल प्लीजिंग भी बहुत करा है. आपने जो है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड होकर भी बहुत काम करा है ना. आपने अपने पेन्स को अपने तक रखा है और दूसरों की मदद करी है. बट विद नाउ द मूवमेंट ऑफ द किंग ऑफ पेनिकल्स कार्ड, इट शोज कि
एक एक कहीं ना कहीं जो एक पेसिमिज्म भी जो आपके अंदर था पहले, वो अब ऑप्टिमिज्म में बदलेगा, और एक लो सेल्फ कॉन्फिडेंस अब हाई सेल्फ एस्टीम में बदलने वाला है। और प्रैक्टिकल रियलिटी, बिकॉज पेंटिकल्स इज अबाउट द प्रैक्टिकल रियलिटी, तो प्रैक्टिकल रियलिटी में जो आपके मन में जैसे जो गोल्स थे या आप चीज़ें अचीव करना चाहते थे, अब वो प्रैक्टिकल रियलिटी में उन चीज़ों के प्रति आप एफर्ट डाल पाओगे और उनको अचीव कर पाओगे। रणभूमि से पहले मनोभूमि में वो युद्ध खेला जाता है या वो युद्ध किया जाता है, तो अब वो आप कर चुके हो, मतलब आपने सब नाप नपाई कर ली है, सारा अपना मैथमेटिक्स लगा लिया कि ऐसे ऐसे इस तरीके से करना है, प्लान स्ट्रैटेजाइज कर लिया, अब आप उस पर लिटरली एक्ट करने वाले हैं। एंड द यूनिवर्स सेज दैट दिस इज द राइट टाइम टू एक्ट ऑन इट, एंड द यूनिवर्स सेज दैट यू आर रेडी. If you are like, oh, I'm not ready, I'm not, no, the universe is like, you are ready. So do it now. Something more, कुछ और क्लियर कट मैसेज जो यूनिवर्स देना चाहता है पाइल नंबर 1 को, अगर हमें कुछ और मिले. सो है विक्ट्री. सो या विक्ट्री कार्ड ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है. अगेन 444 444 44, ऐसे आप बार बार 4 नंबर देखें तो अगेन रिमेंबर कि विक्ट्री का नंबर है आपके लिए. विक्टोरियस आप होते हुए नज़र आ रहे हैं. जिस भी चीज़ में आप एफर्ट डालेंगे उसमें आप विक्टोरियस बनने वाले हैं. आपको वो ताज मिलने वाला है. जस्ट लाइक विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स में भी ताज पहना है, यहाँ पर भी सी द क्राउन. सो समहाउ योर हेयर आर ऑल्सो लुकिंग रियली नाइस, बिकॉज हेयर जो है वो भी एक क्राउन है हमारा, विच वी नेवर रिमूव, है ना. तो योर हेयर, इफ़ यू आर डीलिंग विद हेयर फॉल रिलेटेड इशू, तो वो क्योर हो जाता है. समहाउ सम ऑफ यू आर गेटिंग न्यू हेयर कलर डन, न्यू हेयर कट डन, कुछ बालों के साथ आप करेंगे और वो बहुत सुंदर लगेगा. And I see that many of you are buying jewelry, gems with the victory here. Oh my gosh, अभी fireworks चल रहे हैं, पता नहीं कौन पटाखे फोड़ रहा है, बट या तो पटाखे हम कब फोड़ते हैं, जब खुश होते हैं, है ना. दिवाली में पटाखे फोड़े जाते हैं कि खुशी, है ना. So basically everybody is going to be happy of what you're going to perform. Eventually everybody is going to be happy. Some of them can be offended for sure, because those people were actually jealous of you. So unko hone do offend, but there are going to be people who are going to love what you're doing. They are going to be happy for you. Happiness हैप्पी टाइम आपके लिए आ रहा है. वी हैव द साइलेंस कार्ड. वी हैव नंबर 44 अगेन. वी हैव नंबर 44. आई टोल्ड यू लाइक 444. और जब आप नंबर 4 देखें, रिमेंबर कि वो विक्ट्री का साइन है आपके लिए. आप उस चीज़ में ज़रूर विक्टोरियस होंगे. ये 44 नंबर साइलेंस ये भी शो कर रहा है कि साइलेंस की पावर को यूज़ करो. एट टाइम्स जो है जब आप अकेले बैठे हो तो यू शुड नॉट ऑलवेज बी वर्किंग. आपको कुछ समय जो है थोड़ा सा लेना चाहिए शांति में बैठने के लिए. ऑल राइट, स्पेशली जो है इवनिंग टाइम, आई फील 4 PM के बाद, मतलब इवनिंग टाइम कभी भी, इट कैन बी 6 7, मतलब 4 PM के बाद कभी भी यू शुड गिव योर सेल्फ अ टाइम जहाँ पर आप साइलेंट होकर बैठते हैं, कुछ और नहीं कर रहे, बस अपने ब्रीदिंग पर फोकस करते हैं, नेचर को निहारते हैं. यू गो फॉर अ वॉक, मतलब अपने साथ आप टाइम स्पेंड करें. ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. देन वी हैव अबंडेंस कार्ड. सो या अबंडेंस आपके जीवन में आ रहा है. भरपूरता की महसूसता आप देखेंगे, मतलब आपको तन मन धन जन का सुख मिलेगा. तन भी आपका स्वस्थ होगा, मन से भी आप अच्छा महसूस करेंगे. जन यानी रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे होंगे, और धन यानी मनी भी आपके पास पूरा होगा. सो ऐसे ज़िंदगी में अबंडेंस भी आती हुई नज़र आ रही है. सो दैट्स वंडरफुल. इस एस्ट्रोलॉजी डेक से और क्या इन्फॉर्मेशन है. So we have the sign of Cancer. It says immerse. So Cancer sign represents peace, harmony, hope, buying a new home, getting a new vehicle. है ना, some of you are getting this in 1 month. मदर के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, ये दिखता है. एक सुकून यहाँ पर होगा. कैंसर साइन मून रूल करता है, तो ये सुकून का भी है. तो आपको सुकून महसूस होगा, पीस महसूस होगा. एंड इवन अगर आप ओवर थिंक करते थे चीज़ों को लेकर, अब आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप जो चीज़ें सोचते थे वैसा वैसा आप एक्ट में ले आएंगे, तो आपको ज़्यादा सोचने के लिए चीज़ें होंगी नहीं. वी हैव द सैटर्न कार्ड. अभी हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स में सैटर्न की बात कर रहे थे कि एक सेट्रेनियन कार्ड है, तो यहाँ सैटर्न भी आगे. तो यू मे हैव सैटर्न मून कंजंक्शन, या मून के आगे या मून के पीछे सैटर्न हो सकता है, जो कि यही शो करता है दैट यू वर बॉर्न इन 6.5. तो जो लोग 6.5 में पैदा होते हैं ना, वो लोगों की जब दूसरी 6.5 आती है, देखिए हर किसी की ना 3 6.5 आती है लाइफ में. पहली जो उनकी बचपन में आती है, दूसरी आती है उनकी
जवानी में, तीसरी आती है उनके बुढ़ापे में। तो जो पहली साढ़े सती होती है वो उनके पेरेंट्स पर पड़ती है, जो दूसरी साढ़े सती होती है वो उन पे खुद पे पड़ती है, तीसरी साढ़े सती जो होती है वो हमारे बच्चों पर पड़ती है। सो आप समहाउ पाइल नंबर 1, यू गाइज वर बॉर्न इन साढ़े सती। आपके मून सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, मून के पीछे मून के आगे सैटर्न होगा, जो कि अगेन ये शो करता है दैट यू आर बॉर्न इन साढ़े सती। सो यू शुड नॉट बी अफ्रेड कि पता नहीं मेरा साढ़े सती में क्या होगा, क्योंकि साढ़े सती का तो बहुत ही मतलब मार्केट में जो है अफवाहें बहुत ज़्यादा है साढ़े सती के बारे में कि ख़राब होती है। बट गेस व्हाट, साढ़े सती इज़ द टाइम विच गिव्स यू मैरिज, साढ़े सती इज़ द टाइम विच गिव यू प्रोग्रेस इन करियर, साढ़े सती इज़ द टाइम जहाँ पर आप सीखते हो हाउ टू बी एन अडल्ट, हाउ टू बी डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर्ड। बट हाँ, अगर आप डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर्ड नहीं होते तो साढ़े सती आपके लिए टफ हो सकती है, तो वो टफ हो सकती है। So what I see that you were already born into that storm, you were born in the battlefield, you were born in साढ़े सती। तो even if साढ़े सती आपको आती भी है तो आपको खास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, it will be a normal thing for you। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी साढ़े सती कब ख़त्म होगी। You may not even realize it because you are already such a career oriented person, क्योंकि मून मन है, सैटर्न करियर होता है, कर्मों को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। तो पहली बात तो आपकी मदर वर्किंग मदर हो सकती है, उनका खुद का करियर हो, या फिर आपकी मदर बहुत ज़्यादा काम के बारे में सोच सकते हैं कि मेरे को ये काम करना है, वो काम करना है। मतलब शी कैन बी समवन जो काम के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। एंड यू आर ऑल्सो समवन पाइल नंबर 1 जो हमेशा काम के बारे में सोचता रहता है कि मेरे को ये काम करना है, 2 घंटे बाद मेरे को ये काम करना है, मेरे को करियर में ये वाला काम करना है। मतलब हमेशा आप अपने करियर के बारे में सोचते रहते हैं, या जो 2-4 घंटे बाद काम करना है, अगले दिन काम करना है, उसके बारे में सोच के अपना पीस ऑफ माइंड खत्म करते रहते हो। आप में ये है, ये चीज़ प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज़ है। तो साढ़े सदी में भी हम प्रोक्रेस्टिनेट ही तो कर रहे होते हैं। मून पर मन पर सैटर्न आ रहा है, सैटर्न आया होता है, नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, ये मन पर आया होता है, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब फील करता है। बट जो ऑलरेडी बॉर्न ही साढ़े सती में है वो ऑलरेडी ये चीज़ सोच ही रहा होता है, तो उसको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर लाइक कि हाँ ये तो नॉर्मल ही है। सो जो आप अगेन काफ़ी समय से आप यही आपकी आदत है पाइल नंबर 1 काम के बारे में सोचते रहने की मेरे को ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, फिर ये काम है, फिर वो काम है ना। तो इस पे कहीं ना कभी फुल स्टॉप लगता हुआ नज़र आ रहा है। यूनिवर्स से सेइंग कि एक पीस का टाइम आ रहा है आपके लिए, मेंटल पीस का, जहाँ पर आप एक्ट अच्छा कर लेंगे, कर्म प्रधान नज़र आ रहे हैं, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, स्ट्रक्चर आपके अंदर आता हुआ नज़र आ रहा है, हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज आप लोगों से क्रिएट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और किसी को अपने इनर सर्कल में जल्दी से एंटर नहीं होने देते हैं आप, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑल राइट, एंड दिस हेयर शोज़ मी कि आप समय पर काम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि लेट हो रहे हैं काम करने में, नहीं, समय पर काम कर लेते हैं। इस वजह से मेंटल पीस भी नज़र आ रहा है। वी हैव द फेज एंटेंगलमेंट कार्ड, इट सेज इमोशनल इन्फ्लुएंस। आई डिड टोल यू देयर आर सम पीपल अराउंड यू हु आर जेलस, ऑब्सेसिव अबाउट यू, एंड दे आर पुटिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू। यू मे और मे नॉट रियलाइज इट राइट नाउ, बट ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं। मे बी यू गाइज नो इट ऑलरेडी, बट दिस इज़ अ फेज एंटेंगलमेंट, मीनिंग दैट ये लोग आपके जीवन से जाने वाले, कोई परमानेंट लोग नहीं हैं। सो दैट्स अ रिलीफ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या मैसेज है पाइल नंबर 1 के लिए? सो वी हैव द कॉइन्स, गुड लक कार्ड है, money is coming in for you for sure, pile number 1. Again we have 10 number which represents career, Capricorn sign, the 10th house, कर्म क्षेत्र। सो कर्मों पर आप बहुत फोकस करेंगे, अच्छा कर्म कर पाएंगे, जैसा कर्म करना चाहते हैं वैसा कर्म कर पाएंगे। ऐसे ऑब्स्टिकल हर्डल्स नहीं आएंगे, अगर आएंगे उसके बावजूद आप अपना कर्म जो आपने सोचा हुआ है वो आप करके ही रहेंगे। लक आपके साथ है। Then we have flamingo, it says fun, so you're also going to have fun with someone, there is some वन जिसके साथ आप बहुत क्लोज होने वाले हैं और उसके साथ आप बहुत एक फ़न टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा फन करेंगे। अगेन ग्रीन कार्ड है, ग्रीन इज़ द कलर ऑफ मर्करी। मर्करी इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स ऑल्सो अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। मर्करी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। हस्बैंड वाइफ इज़ वीनस मार्स, वीनस वाइफ है, मार्स हस्बैंड है। मर्करी इज़ योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मर्करी रिप्रेजेंट्स फ्रेंड्स। तो कोई फ्रेंडशिप यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। यू मे गेट अ न्यू बॉयफ्रेंड, यू मे गेट अ न्यू गर्लफ्रेंड, या फिर अभी अर्ली है,
ये कहना मतलब मे बी यू आर गोना मेक अ फ्रेंड एंड देन दे आर गोना बिकम योर बॉयफ्रेंड और द गर्लफ्रेंड, बट आई डू सी दैट यू आर कम्युनिकेटिंग विद समवन एंड यू आर हैविंग फन विद समवन, बट ऐसा भी कोई डिसाइडेड नहीं है कि इसके साथ आप एक रिलेशनशिप में आएंगे एंड ऑल, वो डिसाइडेड नहीं है, बट इट डज शोज कि देखेंगे, अभी नथिंग इज सेट इन स्टोन, देखेंगे अभी इस पर्सन को, जानेंगे, बात करेंगे, मज़े करेंगे, है ना, तो ये सीन उस पर्सन के साथ चलेगा, यू विल हैव लॉट ऑफ फन, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहता था. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल 1. गो फॉर इट, जो आप करना चाहते हैं गो फॉर इट, टेक योर स्टैंड, बिकम अ बैड गर्ल और बैड बॉय फॉर सम टाइम, बिकॉज इवेंचुअली यू विल राइज, लोगों की नज़रों में इज्जत आपकी बढ़ेगी इवेंचुअली. सो दैट्स देयर. सो दैट वाज इट, प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल नंबर 1. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो हाँ, द साइन ऑफ एरीज, जेमिनाई, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे. कैंसर साइन में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, पुष्य, अश्लेषा. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. देन सेजिटेरियस में मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. फिर उत्तर आषाढ़ा स्पिल करता है कैप्रिकॉर्न में, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 और D9 नवांश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. मून सैटर्न या मरकरी, इनमें से वो एक प्लांट आपका आत्मकारक प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees. So yeah, that was pretty much it. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do also tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now winning citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the power card or you picked this pile because आपका जो birthday है वो 2, 6, 9, 11 13, 18, 19, 22, 27, 28 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. What you need to know right now, pile number 2, वो क्या मैसेज है जो यूनिवर्स आपको अभी देना चाहता है. What do you need to know right now, pile number 2? Okay, all right, so we have 3 of swords. You went through a heartbreak recently. current energies जो है वो यही आ रही है. पहला कार्ड current energies का होता है, recent past का होता है. तो recent you went through some heartbreak and we have new beginning as well after this heartbreak with the Ace of Cups. So yep, universe is like कि एक डोर बंद होता है तो दूसरा universe is opening, दूसरा door the universe is opening for you. Are you ready for this or not? That's the question. We have the King of Swords. All right, okay. We have the Lovers. This is for many of you this is a romantic thing. For some of you can be related to career. हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. We have the 5 of Swords. What I really feel is power struggle, ego battles, ego clashes. You want to do something and your partner wants to do something else. They want to follow some other path. You want to follow your path. And your partner may say, or जिस person के साथ आप थे, they may say that you are very cutthroat, direct, straightforward, to the point kind of a person. You don't negotiate. You don't आप बात नहीं मानते, आप stubborn individual हो. But you really felt a strong, deep connection with them. Yes. The universe here tells you, or it can again be a career related situation which happened कि आपको कोई पोजीशन चाहिए थी, कोई सीट चाहिए थी किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वो आपको नहीं मिला, उसके कारण वो हार्ट ब्रेक है. The universe says that I am giving you some seat in some other college or university, या मैं आपको पोजीशन दे रहा हूँ किसी और कंपनी में काम करने की, और वो कंपनी या वो जगह मच बेटर है आपके लिए. जो डिवाइन प्लान है वो ये है, जो आपके प्लान से डिफरेंट है. ऑल राइट, आपका प्लान वर्कआउट नहीं करा, बट द डिवाइन प्लान हैज़ टू वर्क आउट. ऑल राइट, समटाइम्स वी डोंट इवन नो, पाइल 2, कि क्या हमारे लिए ठीक है.
तो जो डिवाइन है, अगर हम उसे एक पेरेंट की तरह देखें, यूनिवर्स को हम अपने पेरेंट की तरह देखें, तो पेरेंट को ज़्यादा पता होता है कि बच्चे को अभी क्या ज़रूरत है, क्या नीड है. तो यूनिवर्स सेड दैट यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, और यू डिज़र्व मच बेटर देन दिस. ऑल राइट, यू डिज़र्व मच बेटर देन दिस. सो यूनिवर्स कहता है प्लीज़ अपना हार्ट, अपना दिल फिर से जोड़ लो, उसको टेप लगाकर फेविक्विक से जोड़ लो जैसे भी, बिकॉज अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड यू शुड टेक ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी से इवेंचुअली बहुत प्रोस्पैरिटी आएगी, मनी आएगा, इमोशनल सेटिस्फैक्शन आएगा. किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करता है देयर वर सम पीपल और देयर वर सर्टेन companies or colleges who didn't understood your IQ, who didn't understood who you truly are. वो आपको समझ नहीं पाए, आपको देख नहीं पाए, आपको पहचान नहीं पाए, क्योंकि अगर पहचानते तो वो ऐसा कभी ना करते, वो आपकी वैल्यू ही नहीं करते थे, इस वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया. अब वो कंपनी थी जिसने कहा कि वी आर लेटिंग यू गो बिकॉज वी डोंट नीड यू एनी मोर, और इट वॉज अ पर्सन, व्हाटएवर इट वॉज, दे डिडंट सॉ योर वैल्यू. तब आप उस जगह से निकले हैं. ऑल्दो विद द लवर्स कार्ड यू फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स दैट पर्सन और स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स दैट प्लेस. आई गेट यू. कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशन था जो अब खत्म होता है, वो नेगेटिव वे में कार्मिक रिलेशन था, वो खत्म होता है. यू विल फाइंड दैट you will find yourself like you will feel that I belong here. जो यूनिवर्स आपको एक नई जगह पर लेकर जा रहा है, एक नई शुरुआत कर रहा है, वहाँ पर लिटरली आप ये फील करेंगे दैट यस आई बिलोंग हेयर. यहाँ पर मेरे को एक पीस है, यहाँ पर मेरे को एक काम है, मेरा नर्वस सिस्टम यहाँ पर काम डाउन फील कर रहा है. दिस इज गोना हैपन. All right, again I feel कि Mercury Rahu conjunction Mercury Mars conjunction Mercury Rahu can be trine from each other, Mercury Mars can be trine from each other, जो कि ये प्लेसमेंट यही शो करती है कि एजुकेशन में कट्स एंड ब्रेक्स आएंगे, ड्रॉप ईयर्स आएंगे एजुकेशन में. और अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, यानी जिम विम जाता है, एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, पिलाटेस करते हैं, या कोई स्पोर्ट्स खेलता है, तो ये कट्स एंड ब्रेक्स एजुकेशन में नहीं आएंगे. पर अगर आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो ये कट्स एंड ब्रेक्स एजुकेशन में आएंगे. कहीं ना कहीं बचपन खराब बीता होगा, क्योंकि मरकरी बचपन भी होता है. बचपन में ही यू फेल्ट लाइक एन अडल्ट, इवन तो बचपन था पर बचपन जैसा बचपन नहीं था. आप मेंटली एक अडल्ट बन चुके थे, बचपन से ही आप ऐसे थे. ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं बचपन एंजॉय नहीं करा, क्योंकि मरकरी बचपन भी होता है. मरकरी जब राहु या मार्स के ऐसा उस ट्राइन में हो, उसके इन्फ्लुएंस में हो, तो बचपन भी अडल्टहुड जैसा हो जाता है, चीज़ें समझ आती है ज़्यादा ही आपको. आपका हाई IQ है, पाइल नंबर 2. अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ हाई IQ पर्सन, जो मतलब सोचता बहुत है. स्वॉर्ड्स की एनर्जी सोच विचार करने की एनर्जी है. यहाँ पर भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि ये शो करता है दैट यू आर अ वेरी हाई IQ पर्सन. और आपको पहले ही पता लग जाता है किसी के पहले दूसरे सेंटेंस से कि ये आखिर में इवेंचुअली बोलने क्या वाला है. सो यू आर अ वेरी हाई IQ पर्सन. All right, something more if we can get, or क्या information. So we have 2 of cups, like the universe is giving you a person. The universe is making you meet someone, and that someone is like very similar to you. Mirroring energy यहाँ पर है. They are very similar to you. यहाँ पर भी we see 2 people. यहाँ पर भी we see 2 people. These 2 people are looking at their hands. All right, again these 2 people are looking at each other. All right, और यहाँ पर जो थे इस ये वाला जो एनर्जी जो पास्ट का मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो यही नज़र आ रहा है दैट यू लेफ्ट दैट पर्सन, दे लेफ्ट यू. ऑफ कोर्स यू फेल्ट बैड, यू वर हार्ट ब्रोकन, बट नाउ द यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग कलर्स इनटू योर लाइफ. इज बेसिकली कलर्स इनटू योर लाइफ का मतलब है कि पिंक टिंटेड ग्लासेस से देखना, या क्या कहते हैं, मतलब गुलाबी माहौल होना. सो यहाँ पर यही दिख रहा है कि द लव इज़ इन द एयर फॉर यू, रोमांस इज़ कमिंग इन योर लाइफ, क्रिएटिविटी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, मनी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग इन योर लाइफ, एंड यू आर गोना मीट समवन इन दैट यूनिवर्सिटी, कॉलेज और एट योर वर्क प्लेस, जो बिल्कुल सिमिलर होगा आप जैसे होंगे, और उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आपसे सिमिलर होंगे. एंड यू गोना फील अ स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स देम, दे आर गोना फील अ स्ट्रॉन्ग पुल टूवर्ड्स यू. गाइज आर गोना बी क्वाइट सिमिलर. और ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जब आप एक दूसरे से मिलते तो यू गाइज आर एट पीस, बिकॉज कप्स की एनर्जी है. लाइक समवन इज ऑफरिंग यू समथिंग, समवन इज ऑफरिंग यू लव, समवन इज ऑफरिंग यू अ फॉरएवर.
a beautiful happily ever after. Someone is offering you a soulmate kind of connection, because they feel a soulmate connection with you and you will also feel a soulmate connection with them. और mirroring energy is similar, आप दोनों नज़र आ रहे हैं. एंड अगेन जेमिनाई साइन में प्लांट्स प्लेस्ड हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के. मरकरी कैन बी और धाराकारक प्लांट, पाइल नंबर 1, pile number 2, Mercury can be a Dharakarak plant holding the lowest degree in your chart, plant which is nearest to the 30 degrees, nearest to the 0 degrees, और या फिर धाराकारक प्लांट थर्ड हाउस या जेमिनाई में होगा. और इस पर्सन का जिससे आप मिलेंगे, ये इंडिविजुअल का जेमिनाई साइन में आत्मा कारक प्लांट प्लेस्ड हो सकता है, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन अ चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज आत्मा कारक प्लांट होता है. वो मरकरी हो सकता है या फिर वो जो भी प्लानट होगा आत्मा कारक प्लांट वो थर्ड या जेमिनाई साइन में होगा, थर्ड हाउस या जेमिनाई साइन में होगा, D1 में या D9 चार्ट में. तो ये प्लेसमेंट्स ऐसी यहाँ पर नज़र आ रही है. All right, but I do see that you're going to talk to each other a lot. Again, you can be in a place जहाँ पर बहुत सारे और लोग भी हो सकते हैं. All right, but you guys are going to look at each other. You guys will have eyes for each other. जहाँ पर यूजुअली आप बैठे होते हो या जहाँ पर यूजुअली ये इंडिविजुअल बैठे होते हैं, आप लोगों की नज़र उन्हीं जगहों पर जाती है. और जब आप लोग वहाँ पर उस जगह पर नहीं होते तो you guys will miss each other as well. ये यहाँ पर नज़र आता है. एक इंस्टेंट कनेक्शन आप फील करेंगे. एंड when you are going to meet this person, आपके थॉट्स रुक जाते हैं. जो आपका मन दिमाग कुछ ना कुछ बोलता रहता है, वो शांत हो जाएगा और आप इस इंडिविजुअल की सुनेंगे जब ये बोलेंगे और ये आपकी सुनेंगे जब आप बोलेंगे. एक शांति सी पड़ जाती है, एक सुकून सा आ जाता है इस पर्सन को मिलके. सो दिस इज व्हाट आई सी. ऑलराइट, समथिंग मोर. सो वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. माय गॉड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, Queen of Swords भी है. You're really a high IQ person, pile number 2. And I also want to say that the person you're going to meet, they are also going to be a high IQ person. क्योंकि किंग भी है, क्वीन भी है, तो मतलब दोनों है ना, दोनों लोग हैं यहाँ पर, दोनों एनर्जीज है यहाँ पर. सो वन पर्सन इन दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द अदर इज गोइंग टू बी द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों का सोच विचार सिमिलर है. अभी हम यही बात कर रहे थे कि मिररिंग एनर्जीज है, दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के. मतलब जो आपको आइडिया आता है वही आइडिया इस इंडिविजुअल को भी उसी समय पर आता है. जो बात आप बोल रहे थे, बोलने वाले थे, आप दोनों बात इकट्ठे बोल पड़ेंगे, है ना. ये बहुत सिमिलर आपका कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन स्टाइल होगा, और दोनों का दिमाग एक जैसा है, सिमिलर है, एक तरीके से ही चलता है. मतलब दोनों बहुत प्रैक्टिकल भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. सो दिस इज वॉट वी आर गेटिंग. मतलब बुद्धू बनने वालों में से नहीं, बहुत प्रैक्टिकल आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. एंड अगेन विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका लॉजिक, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, वो बहुत और अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है. इफ़ यू आर स्टूडेंट वॉचिंग दिस रीडिंग, आई वांट टू से दैट इन द कमिंग मंथ, इन द नेक्स्ट 30 days, आप खुद देखेंगे कि आप कॉन्सेंट्रेट अच्छा कर पाएंगे, आप फोकस और अच्छा कर पाएंगे, और अच्छा जो है अपने एग्ज़ाम्स है या कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन हर्डल ऑब्स्टिकल से, तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं. इफ़ यू आर समवन जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, जो जॉब चाहते हैं, तो यू गाइज विल हैव टू कम्पीट अगेंस्ट पीपल, तब जाकर वो आपको पोजीशन मिलता है. तो मेनी ऑफ यू आर कैन बी इन अ सिचुएशन जहाँ पर यू हैव टू कम्पीट, है ना. तो आप जीत पाएंगे, ये यहाँ नज़र आ रहा है. कैसे जीतेंगे? अपने बुद्धि बल से जीतेंगे. अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बुद्धि बल है, तो अपने नॉलेज से, अपने विजडम से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपने क्विक विट से जीतेंगे, अपने राइट कम्युनिकेशन से जीत पाएंगे, है ना. और कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं जब आप कम्युनिकेट करते हैं. अगेन वी सी द एलिफेंट हेयर, वी सी द पावर. तो ये एलिफेंट आप ही को सिग्निफाई कर रहा है, पाइल नंबर 2. तो आपने चाहे इस पाइल को अपने इस कार्ड से पिक करा, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा. दिस एलिफेंट कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पावर कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एलिफेंट को हम कहते हैं कि एलिफेंट की मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट की, एलिफेंट की जो मेमोरी होती है वो बहुत तेज़ होती है. तो आप खुद देखें कि आपका मेमोरी स्किल बहुत इंप्रूव होने वाला है. अगेन आप एक स्टूडेंट है, कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, कि नहीं कॉम्पिटिशन का पार्ट बनेंगे, तो अपनी मेमोरी कारण आप जीतेंगे, मेमोराइजेशन स्किल कारण जीतेंगे. इनफैक्ट आपके अंदर जुपिटर का तत्व बढ़ रहा है. जुपिटर वेट को रिप्रेजेंट करता है, फैट इन आवर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. तो जुपिटर का तत्व बढ़ता है, तो यानी आप कहीं ना कहीं वेट गेन करेंगे,
तो अगेन ये वेट गेन एक हेल्दी वेट गेन है. अगर इट्स नॉट अबाउट ओबेसिटी, इट्स नॉट अबाउट बीइंग ओवरवेट, इट्स जस्ट अबाउट हैविंग अ लिटिल वेट ऑन योर बॉडी, है ना. भरा भरा मुंह होना, ऐसा फ्लफी चीक्स होने, ऐसा थोड़ा भरा भरा सा जो अच्छा लगता है वेट, उस वेट की मैं बात कर रही हूँ. सिर्फ पेट ही पेट बाहर आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली राहु, वो खराब है. पर एक होता है कि पूरी बॉडी पर वो वेट चढ़ रहा है, तो दैट्स जुपिटर, है ना. तो वो तत्व आपका बहुत एक्टिव हो रहा है, विजडम आपके अंदर और आता हुआ नजर आ रहा है. इफ सम ऑफ यू मे बी आर राइट नाउ डीलिंग विद टीथ इशूज, दे आर ऑल्सो गोना गेट फिक्स्ड बिकॉज यू आर अबाउट टू गो टू द डेंटिस्ट. ये यहाँ नजर आ रहे हैं इन अ वीक. और पावर कार्ड मेरे को ये शो करता है कि यू विल हैव द पावर व्हेन जिस कंपनी मतलब आप होने वाले हैं ना, आप सिलेक्ट होने वाले हैं, जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप जाने वाले हैं, व्हेन दे सी यू, उस यूनिवर्सिटी कॉलेज के लोग या उस कंपनी के लोग जब आपको देखेंगे, दे विल सी पावर इन यू. दे विल सी कि भाई कोई जुपिटेरियन पर्सन चला रहा है, कोई वाइज पर्सन चला रहा है. यू विल हैव दिस ग्रेविटेशनल पुल. ऑलराइट, जुपिटर इज सेट टू बी द हैवी वन, क्योंकि उसमें ग्रेविटी बहुत है, भारा है वो. तो यही एलिफेंट का जो तत्व है, ये एक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो नेचुरली पीपल आर गोना गेट ग्रेविटेटेड टूवर्ड्स यू. नेचुरली पीपल विल गेट इंटरेस्टेड इन यू, वुड वांट यू टू वर्क विद देम. दे विल सी दैट यू हैव लॉट ऑफ विजडम, दे विल सी दैट यू आर वेरी क्विक विटेड काइंड ऑफ अ पर्सन. और आप इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते हो. यू डोंट गो अकॉर्डिंग टू योर मूड, यू गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान. तो ये बात उनकी बहुत ये बात आपकी उनको बहुत अच्छी लगती है. All right, and you cannot be ignored. कहते हैं ना, elephant in the room. You are that elephant in the room. Pile number 2. You guys cannot be ignored. You have this energy which is now free flowing. All right, wherever you go, that energy is going with you and it is free flowing. आप जहाँ जिस भी कमरे में होते हैं, naturally gravity, मतलब people will look at you. आपके मुंह की तरफ देखेंगे, आपकी तरफ देखेंगे. You have this pull, and when you leave that place, people will miss you as well. बिकॉज वो एक मैजिक खत्म हो जाता है जैसे. सो यू आर बीइंग लाइक द मैजिकल पर्सन. सो दैट्स वंडरफुल. यहाँ पर किसी ने आपको ट्रेजर नहीं करा, दैट डजंट मीन दैट यू आर नॉट अ ट्रेजर और यू आर नॉट वैल्यूएबल. तो एक हीरे की पहचान जो है, जो हीरे का व्यापारी है, उसको ज़्यादा पता है कि ये सच्चा हीरा है या नकली हीरा है. जो ऐसी आम कोई है, आम इंसान, उसको क्या पता, कुछ नहीं पता. तो जिससे प्यार किया था, जो चीज़ चाहिए थी, वो बड़ी आम सी थी. यूनिवर्स कहते यू डिजर्व बेटर. सो वो आम चीज़ हटी है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जगह, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि यू आर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. कोई और मैसेज जो यूनिवर्स देना चाहता है पाइल नंबर 2 को? वी हैव एक्सेप्टेंस. ऑफकोर्स डजेंट मीन कि अगर एक डोर बंद होता है तो आप एक अच्छे इंसान नहीं होना. द अदर डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू, और वहाँ पर आप देखेंगे कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे द वे यू आर. यू डोंट हैव टू चेंज योर सेल्फ. जैसे भी आप हैं, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे. खुली मतलब पीपल विल फील कि आप बड़े खुले विचारों के हैं, आप बहुत मॉडर्न हैं, आप बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, यू हैव लॉट ऑफ डेप्थ इन यू, एंड पीपल विल like would want you to be in their life. all right, आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड करेंगे, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे जैसे भी आप हैं. आपको ये नहीं कहेंगे कि बदलो बदलो बदलो, ये नहीं कहेंगे. बिकॉज दे विल लाइक हु यू आर, दे डोंट वांट यू टू चेंज. ऑफकोर्स आप बदलना चाहते हो, वो आपका एक आपकी मर्जी है, बट दे डोंट वांट यू टू चेंज. हाउएवर यू आर, दे लाइक यू, दे लव यू, एंड दिस पर्सन ऑल्सो लव्स यू द वे यू आर. यहाँ पर मिरेकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर वही है कि सच की नैया वही है, डोलती ज़रूर है, डूबती नहीं है. झूठ की नैया जब ही डूब जाती है. तो हाँ, मिरेकल्स यहाँ पर यही शो करता है, द एंजल्स आर विद यू. आपके अच्छे कर्म आपके साथ हैं. तो आप जब डिवाइन के पाथ पर चल रहे हैं, यूनिवर्स के पाथ पर चल रहे हैं, तो नैया जो है डोलेगी ज़रूर, पर डूबेगी नहीं. मिरेकल्स आर ऑन द वे फॉर यू. सो गेट एक्साइटेड, गेट हैप्पी, बिकॉज मिरेक्युलस थिंग्स आर अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ. जो चीज़ें आपने सोचा था हो ही नहीं सकती जी, इट कैन नॉट हैपन, वही चीज़ें होंगी, वही पॉजिटिव चीज़ होंगी. देन वी हैव इंस्पिरेशन. यू आर इंस्पायरिंग अदर पीपल, यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर पीपल. एंड येस, इफ यू आर फीलिंग दैट I am not inspired to do this, I don't have this inspiration in me right now, I just feel that
I lack inspiration, so you are going to find inspiration now. You are going to get inspired. And later, जो आप कर्म करते हैं, जो आप एफर्ट करते हैं, उससे लोग इंस्पायर होंगे. सो ये बड़ी वंडरफुल बात है. लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं बिना आपके कुछ कहे, मतलब आपके चाल चलन से ही लोग इंस्पायर्ड फील करते हैं. वे विजडम कार्ड, ऑफ कोर्स जुपिटर की हम अभी बात कर रहे थे, एलिफेंट की हम बात करते हैं. एलिफेंट जुपिटेरियन एनर्जी है. तो तो विजडम, ऑफ कोर्स जुपिटर रिप्रेजेंट्स विजडम. तो आपकी नॉलेज अब आपकी विजडम बनती हुई नज़र आ रही है. मतलब इन्फॉर्मेशन नॉलेज होना तो बड़ी कॉमन सी बात है कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, बट उसको जब हम अप्लाई करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, उस नॉलेज को, तो वो हमारी विजडम बनती है. तो जो आपने पढ़ा है, लिखा है, सीखा है, सुना है, उसको अब आप प्रैक्टिकल रियलिटी में अप्लाई करेंगे एंड दैट थिंग विल बिकम योर विजडम. यू आर गोना बी कंसिडर्ड अ वाइज पर्सन. लोगों को लगेगा कि जिस भी ग्रुप में आप होंगे वो ग्रुप जीतेगा ही जीतेगा. वो जो है हार नहीं सकता, बिकॉज यू आर द पर्सन जो नॉलेजफुल है. नॉलेज से बड़ा कुछ भी नहीं. सो कहते हैं ना कि भाई जो ब्यूटी है वो भी ढल जाती है समय के साथ, बट जो ब्रेन्स है वो हमेशा, मतलब ब्रेन इज स्टिल देयर. आई वॉन्ट टू से कि आप वो इंडिविजुअल हैं जो कहीं ना कहीं टॉम बॉय भी हो सकता है. पाइल नंबर 2, ग्रोइंग अप यू कुड हैव बीन अ टॉम बॉय. कहीं ना कहीं अपीयरेंस से भी ज़्यादा आपने अपने जो है पढ़ाई लिखाई पर, नॉलेज अटेन करने में, स्किल अटेन करने में अपना समय बिताया है. तो ये बहुत अच्छी बात है. ब्यूटी विद ब्रेन्स, मतलब सोने पर सुहागा, बट ब्रेन्स होना इट्स लाइक सो इम्पॉर्टेंट एंड यू नो इट. आपको ये रियलाइज होता है कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन एंड यू हैव अ हाई IQ, यू हैव लॉट ऑफ कॉमन सेंस इन यू. ऑल राइट. और हम ये बोलते भी है ना कि कोई इंसान बड़ा ही ब्यूटीफुल था या बहुत ही हैंडसम था, बस काश वो मुंह ना खोलता अपना, क्योंकि जैसे ही उसने मुंह खोला, जैसे ही उसने बात करी, तो सारा चाम ही ख़त्म हो गया. कई बार हम लोगों को ये बात करते हुए सुनते हैं या हम ये खुद कह देते हैं, है ना. तो कितना इम्पॉर्टेंट है वाइज होना, उस पर समय बिताना, कि अपने ऊपर, मतलब इंसान का दिखता है. जो आपकी हैबिट्स है, जो आपका सोच है, वो दिखता है सामने वाले को जब आप बात करते हैं. तो फिजिकल अपीयरेंस सेकेंडरी हो जाती है एक समय के बाद. सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज दैट वैसे तो आप फिजिकली अभी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हो बिकॉज वी हैव द सन एनर्जी हेयर, बट या अगेन वी सी द बुक, वी सी मेमोरी. अगेन ये एक लियो एनर्जी, सन का एलिमेंट और मरकरी का एलिमेंट है. बुध आदित्य योग आपके चार्ट में हो सकता है, जो कि इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन होता है, स्पेशली जब मरकरी के आगे सन हो, या मरकरी के अगले घर में सन हो, या मरकरी सन का कंजंक्शन हो. तो मरकरी लेट्स से 10 डिग्री का और सन लेट्स से 15 डिग्री का, 20 डिग्री का. सो दिस इज अ वेरी गुड मरकरी. अगर मरकरी रेट्रोग्रेड और उस मरकरी के पीछे वाले घर में सन है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मरकरी. ये शो करता है कि स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में आपको बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छे पैसे कमाओगे, और आप बहुत इंटेलिजेंट हो, एकेडमिकली स्ट्रांग हो, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार इंसान हो, आपको बहुत समझ है, आप किसी चीज़ का डीप नॉलेज आपके पास होगा, आप एकेडमिकली स्ट्रांग है. तो ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में होगा पाइल नंबर 2. या मरकरी केतु कंजंक्शन हो सकता है. मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि शो करता है कि डीप नॉलेज होगा अबाउट सम सब्जेक्ट एंड यू आर अ वेरी गुड राइटर. यू कैन राइट लॉन्ग ईमेल्स, लॉन्ग टेक्स्ट मैसेजेस, यू कैन राइट अ बुक, यू कैन पब्लिश अ बुक. तो ये ऐसा होगा. सम ऑफ यू आर डेफिनेटली पब्लिशिंग अ बुक विद इन द नेक्स्ट 6 months. ये यहाँ नज़र आ रहा है. उस बुक को बहुत नेम फेम मिलेगा, आप फेमस हो जाएंगे इसकी वजह से. मेमोरी कार्ड अगेन यही शो होता है कि जो आप पढ़ेंगे वो आप मेमोराइज कर पाएंगे. अगेन वो जो हम एलिफेंट कार्ड को भी देख के कह रहे थे कि आपका जो मेमोरी स्किल है वो इम्प्रूव हो रहा है. सो फिर स्टूडेंट तो ये बहुत अच्छी बात है. आपको एग्ज़ाम देने वाले तो बहुत अच्छी बात है कि आपका मेमोरी स्किल आप मेमोराइज ईजिली कर पा रहे हैं. सो दैट्स वंडरफुल. नेम फेम मिलेगा, अथॉरिटी बॉसेस आपकी फेवर में होंगे, आप टॉप पोजीशन पर आ जाते हैं. वी हैव द मार्स एलिमेंट. सो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल. मार्स हेयर शोज मी कि मार्स आपका आत्मा कारक प्लांट हो सकता है. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी मार्स. ऑल राइट. या मार्स असेंडेंट में हो सकता है. सन मार्स का कंजंक्शन हो सकता है. सन मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है दैट योर फादर कैन बी समवन जो एक इंजीनियर हो या आर्मी में काम करता है, पुलिस में है. दिस कैन हैपन. ऑल राइट. मार्स हेयर शोज की आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो ज़्यादा एक्टिव अब हो रही है. मतलब प्रैक्टिकल एनर्जी, एक्शन लेने की एनर्जी, नेगोशिएट ना करके चीज़ को कॉन्कर करने वाली एनर्जी, ये आपके अंदर बढ़ रही है. एथलेटिसिज्म बढ़ रहा है. जिम विम जाना शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे. कुछ जैसे कि कराटे, जूडो,
सेल्फ डिफेंस या टाइक्वांडो, ये भी आप में से कुछ लोग सीख रहे हैं. मैनी ऑफ यू मे गेट अ बॉय कट डन, दिस कैन हैपन. एंड इवन अगेन विद द मार्स एलिमेंट आई सी कि अब आप एक्शन लेंगे, मतलब अब सोचेंगे नहीं कि भाई ये करूँ नहीं करूँ, ऐसा है वैसा नहीं. यू आर गोना टेक एक्शन नाउ. अब एक्शन ओरिएंटेशन के साथ चलेंगे. वी हैव द स्वॉर्ड एलिमेंट. मार्स वैसे भी शार्प ऑब्जेक्ट है, इट रिप्रेजेंट्स अ शार्प ऑब्जेक्ट, सो इट डज शोज मी दैट यू आर गोना कट एंड पियर्स. जो लोग अब आपका बेटर गुड नहीं चाहते या आपको सर्व नहीं करे, आप उनको जीवन से हटा देंगे. इवन तो आप उनसे कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड हैं, अटैचमेंट है, लव नहीं है, अटैचमेंट है, एंड यू नो इट. आप उन लोगों को हटा देंगे बिकॉज यू रियलाइज दैट दे आर टेकिंग अवे योर प्रेशियस टाइम. जो समय आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर लगा सकते थे वो उन पर लग जाता है. तो यू आर गोना लेट गो ऑफ दोज पीपल. आप उन्हें अपने जीवन से हटाएंगे. और ये स्वॉर्ड एनर्जी ये भी शो करती है कि ज़बान कैंची की तरह चल रही है. सो यू आर गोना बी कट थ्रोट विद योर स्पीच, विद योर कम्युनिकेशन एज वेल. यहाँ पर वी हैव समथिंग मिसिंग कार्ड. इट सेज इंटिमेसी और फर्टिलिटी इशूज. सो इफ यू गाइज आर, if some of you are married already, you guys have a life partner already married, and if you were dealing with fertility issues, तो fertility issues खत्म होते हैं. इंटिमेसी आप लोग के बीच, comfort आप लोग के बीच और बढ़ता है. some of you are also going for IVF. You are going to fertility clinics, and now things are going to work out for you. Next 18 days becomes very important. Your next 8 days becomes very important for conception. They are quite fertile for you. ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. नेक्स्ट 8 days या नेक्स्ट 18 days, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ऑल राइट. इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल्स विद योर स्पाउस, तो वो ट्रबल्स खत्म होती है. यू गाइज विल कम टू अ सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज, विल डू थिंग्स फॉर ईच अदर, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर. सो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. देन वी हैव आइसोलेशन कार्ड, लैक ऑफ कनेक्शन. सो ये भी चीज़ है जो आप फील करते हैं. पाइल नंबर 2, रियलिटी ये है. स्पेशली जो नाइट टाइम है, 4 PM के बाद का टाइम है, स्पेसिफिकली 4 PM ऑनवर्ड्स, इट मे स्टार्ट टू फील लाइक योर एनर्जीज स्टार्ट टू गो डाउन. आप कहीं ना कहीं डाउन महसूस करना शुरू कर देते हैं, आइसोलेटेड महसूस करना शुरू कर देते हैं, लोनली महसूस करना शुरू कर देते हैं, नो वन रियली अंडरस्टैंड्स भी, ऐसा महसूस करना शुरू कर देते हैं. जैसे जैसे सूरज ढलता है तो ये फीलिंग्स कहीं ना कहीं आती है आपके मन में. बट आई वांट टू टेल यू दैट यू डिजर्व द बेस्ट. यू आर एन ओल्ड सोल. इवन दो यू कैन बी इन अ यंग बॉडी, पाइल नंबर 2, you can be a 20-year-old person, a teenager, 30-year-old person, 40-year-old person, all right, but your soul is very old, very 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 old. और ये भी बात है पाइल नंबर 2, I don't know, I'm getting this message for you कि हर ओल्ड एज पर्सन सही नहीं होता. मतलब हर अडल्ट सही नहीं होता. कई बार अडल्ट्स भी गड़बड़ियाँ करते हैं. कई बार अगर आपको लगता है ना कि भाई टीचर ने मेरे को ये कहा, मुझे थोड़ा ये बात अच्छी नहीं लगी, मतलब जेन्युइन नहीं लगी मेरे को ये बात, तो येस, दैट थिंग इज़ नॉट जेन्युइन. दैट्स अ बायस्ड ओपिनियन दैट द टीचर इज़ गिविंग यू. सो ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हर अडल्ट भी सच में अडल्ट नहीं होता. दे आर ऑल्सो नेविगेटिंग with life. All right, every adult is not wise. You need to understand this. But I do see that even though you can be a very young individual, pile number 2, but you have a wisdom of a 200 or a 300-year-old. मतलब आप एक old soul है. आपको पता है कि दुनिया कैसी है, कैसे दुनियादारी निभानी and all that. You're an old soul. You know how you need to live life. So आपको अपने बड़ों की हर बार सुननी नहीं चाहिए. आपको अपने से चलना चाहिए, अपने सोच विचार अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके बड़े शायद आपको सही एडवाइस ना दे पाएँ. All right, and then we have the journey card. So everyone's journey is different. Don't compare your journey with others' journey. ये कहीं ना कहीं message आ रहा है. Then we have angel numbers confirmation. So you're gonna get a lot of angel numbers now. 272, 1212, 1111. Number 22 भी है यहाँ पर भाई. ये देखो 22. So yeah, like of course you're gonna see these mirroring numbers. You're gonna see like 22, like these numbers. तो ये numbers इसी वजह से हैं, ये universe आपको कहता है कि I am there with you, you are not alone, मैं तुम्हारे साथ हूँ. So go ahead, do what you feel like is the right thing to do that thing. All right, full अपना जो है self confidence के साथ, जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, confidence के साथ वो करिए. I am with you. All right, your spot is booked. मतलब जहाँ पर आपको जॉब लगनी है, जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में पोजीशन मिलनी है, या जहाँ पर भी आपको जाना है, वहाँ आपका स्पॉट ऑलरेडी बुक्ड है. यू जस्ट हैव टू गो देयर.
ग्रैब दैट सीट, दैट्स इट, वो ऑलरेडी आपके लिए है, आप ही को मिलेगा क्योंकि यू आर मेंट फॉर दैट. सो ये बार बार ये नंबर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट. पाइल नंबर 2, एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो मरकरी कैन बी और आत्मा कारक प्लानट या कैन बी और धारा कारक प्लानट. ऑलराइट, और मरकरी असेंडेंट का हो सकता है, मार्स असेंडेंट का हो सकता है, मरकरी सन का कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी के आगे या पीछे सन हो सकता है. देखिए अगर मरकरी रेट्रोग्रेड नहीं है, मरकरी डायरेक्ट है आपके चार्ट में, और मरकरी के पीछे सन है, पीछे वाले हाउस में सन है, या मरकरी सन का कंजंक्शन है और मरकरी जो है आगे है सन के, लेट्स से सन 10 डिग्री का है, मरकरी 15 डिग्री का, तो इस केस में जो है एक इंडिविजुअल को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसमें उसका नुकसान हो जाएगा, पैसे डूब जाएंगे. तो बी केयरफुल विद दिस. ऑलराइट, सो ये प्लेसमेंट्स कहीं ना कहीं होंगी. सन मार्स का कंजंक्शन हो सकता है, सन मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. मार्स या मरकरी या सन में से कोई प्लांट आपका आत्माकारक प्लांट हो सकता है, प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. और जैसे साइन हो गया एरीज का, लियो, वर्गो, ऑलराइट, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. इवन पाइसीज में प्लांट्स प्लेस होंगे बिकॉज पाइसीज और एरीज में जो है भरणी और रेवती और भरणी नक्षत्र रिस्पेक्टिवली आते हैं. भरणी और रेवती नक्षत्र जो हैं दोनों एलिफेंट रूल्ड नक्षत्रस हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें भी आपका मून सन या कोई प्लांट जरूर प्लेस्ड होगा भरणी नक्षत्र या रेवती नक्षत्र में. तो एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, फिर लियो में माघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी स्पिल करता है, वर्गो में हस्ता चित्र, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में उत्तरा शरद श्रावण धनिष्ठा, पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1 D12 D9 नवंबर चार्ट में आपके जरूर कोनो के प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra only reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, is a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the Voyage card or you picked this pile because आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका बर्थडे 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26 या 29th या 31st को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. वॉट यू नीड टू नो राइट नाउ. यूनिवर्स आपको क्या वो मैसेज देना चाहता है अभी ही, क्योंकि वो अभी के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. यू नीड टू नो दिस राइट नाउ. पाइल 3, तो क्या मैसेज है. ओके, सो वी हैव 10 of wands. ओके, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम उठाते हैं, सारे काम करने की जिम्मेदारी हमारी है, हमें दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू आर बिकमिंग लाइक अब हर मतलब आप अपना क्यों इतना मिसयूज़ करा रहे हो. पाइल नंबर 3, व्हाट विल यू गेट. प्लीज़ अगेन वी हैव डेविल. ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ हो गया है, बहुत ज़्यादा वाला. बुद्धू भी बन गए हो कई कुछ लोगों से इनफैक्ट. सो माय गॉड, वी हैव द पेज ऑफ wands. ओके, वी हैव द 2 more cards. वी हैव द 7 of pentacles. वी हैव पेज ऑफ pentacles. ओके, चलो ठीक है, फाइन. आपको ये तो रियलाइजेशन है वैसे कम से कम कि मेरा गलत इस्तेमाल हो गया है. आई हैव बिन यूज्ड बाय सम पीपल. यू नो इट. इट्स अ गुड थिंग. एटलीस्ट एक नोइंग होती है तो इंसान को जब पता है कि ऐसा हो गया मेरे साथ. कई बार तो पता भी नहीं होता कि यूज़ हो गया, हमारा बुद्धू बन गया, बाद में पता लगता है कि अरे ऐसा हो गया. सो व्हाट आई सी इज दैट देयर वर सम पीपल. अभी जो रीसेंट एनर्जी है, करंट एनर्जी जो है वो 10 of wands वाली डेविल वाली है, वो यही आ रही है दैट यू फेल्ट यू वर अ पपेट. you dance on other people's tune. You did things which you felt really uncomfortable doing. Alright, आप अपने comfort zone से बहुत ही बाहर आ गए, जो कि अच्छा है comfort zone से बाहर आना, but it's like कि
यू आर नॉट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन बिकॉज यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ. ऐसा नहीं है आप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन किसी और को बिल्ड करने के लिए आ गए हो. दिस इज नॉट अ वेरी गुड एनर्जी. पाइल नंबर 3, इट शोज कि आपका मिसयूज हुआ है. दिस शोज कि आपका फ़ायदा उठाया गया है और आप फ़ायदा खुशी खुशी उठवाते भी चलेंगे बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन. यू आर एन इनोसेंट पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन. दैट्स वाई. But now, what I see is, with the Page of Wands energy, things are turning around. Things are turning around now. You're going to see karma is coming back. Justice is now going to be served. I see that you have this realization कि मैंने out of the comfort zone जाकर किसी ऐसे person को power दे दी है जो deserve नहीं करता है. अपना गलत इस्तेमाल मैंने करवा लिया है. Now you want to let go of this chapter. You want to end this chapter in your life. आप कहते हो कि जो उसने मेरे साथ बुरा करा, मेरे को यूज़ करा, उसके साथ अपने आप हो जाएगा. आप उससे भिड़ने नहीं वाले हो, आप उससे झगड़ने नहीं वाले हो. आप जो है मूव ऑन करने वाले हैं. यू आर गोना बी लाइक कि उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ. क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एंडिंग का कार्ड है. तो इस मेहनत मजदूरी का अब एंड होता है. नाउ यू गोना स्टार्ट टू डू थिंग्स फॉर योर सेल्फ. नाउ यू गोना लिव लाइफ फॉर योर सेल्फ. पेज ऑफ वॉन्ड्स है, आप अपना जीना सीख रहे हैं. पेज एक बच्चा है, वो जीना सीख रहा है. वो भी किसके लिए? अपने लिए जीना सीख रहा है. पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. अगेन एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है. पेंटिकल्स की एनर्जी ये शो करता है दैट अब आप स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने वाले हो. अब आप वो चीज़ें करेंगे जिससे आपको पैसों का गेन होगा, जिससे आपको बहुत सारे पैसे आएंगे. All right, you don't care what others are going to think about you and this and that. You are going to say that I want to fill my pockets. अब मुझे पैसे कमाने हैं. 7 ऑफ पेनिकल्स है कि आप मेहनत करके अपना कुछ ग्रो करेंगे. और इन फैक्ट सम ऑफ यू आर ऑलरेडी इन दैट फेज जहाँ पर कुछ आपने ग्रो कर लिया और धीरे धीरे वो और भी ग्रोथ होती चली जा रही है. ऑल राइट, वो करियर में और भी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते चले जा रहे हैं. बट या मैनी ऑफ यू गोना स्टार्ट टू लर्न समथिंग. कोई नया सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं या कोई ओल्ड सब्जेक्ट में ही मास्टरी करने वाले हैं. सम ऑफ यू आर गोना कंप्लीट योर PhD, सम ऑफ यू आर अबाउट टू कंप्लीट योर मास्टर, सम ऑफ यू आर अबाउट टू ज्वाइन अ न्यू कोर्स, आर गोना लर्न समथिंग new here. All right, so this is what I see. Something more if we can get. And we have the 10 of swords. Of course, 10 of swords अगर आप राइडर वेट्स के टैरो डेक में देखेंगे तो 10 of swords represents एक पर्सन पर 10 swords घुसी हुए and that person is in lot of pain. All right, so it does shows कि कोई painful ending तो हुआ है, but like अब आप कहते हैं I don't want to even think about it, talk about it. I want to move forward in my life, and you're also kind of embarrassed of your past. So that's why also you don't want to talk about it. We have the moon energy. So you're being very fearful as well as very emotional right now. तो energies बहुत बहुत positive नहीं है, बहुत fluctuating है, and you are feeling hurt because past में किसी ने आपको hurt करा है, recent past में किसी ने आपको hurt करा है. Someone promised you something but they didn't completed their promise. ऑल राइट, उन्होंने आपको ये रियलाइज़ कराया कि आप उनके लिए मैटर ही नहीं करते हैं, जबकि आपने अपने मन में ये सोचा हुआ था ये पर्सन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो इसके लिए तो मैं अपना काम धाम सब छोड़ के भी इस इंडिविजुअल के लिए टाइम निकाल कर आऊँगी. बट लेटर यू रियलाइज़ कि इस इंडिविजुअल ने आपके लिए टाइम नहीं निकाला, ये इस इंडिविजुअल ने आपका फ़ायदा उठाया. सो दैट इज़ व्हाट आई सी. विद द मून एनर्जी आई ऑल्सो सी ट्रैवल इज़ गोना हैपन फॉर यू. अभी एजुकेशन या करियर की वजह से ट्रैवल नज़र आ रहा है विद इन 18 days, विद इन अ मंथ और सो. ऑल राइट, जो एक डिफ़िकल्ट फेज था, डिफ़िकल्ट टाइम था लाइफ का, वो ख़त्म होता है. अगेन ये कार्ड भी ट्रैवल को ही रिप्रेजेंट करा. अब चाहे आपने इस कार्ड को अपने इंट्यूटिवली पिक करा है या डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग इस पाइल को पिक करा है, तो द कार्ड वॉयज इट ऑलरेडी रिप्रेजेंट्स ट्रैवल. तो एक नई जर्नी पर आप जा रहे हैं. एक ट्रैवल डेफिनेटली यहाँ पर नज़र आ रहा है ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू करियर. इन जनरल अपनी ज़िंदगी में एक नया साइकिल आप शुरू कर रहे हैं, एक नया चैप्टर आप शुरू कर रहे हैं. अगेन आपकी महादशा कोई नई शुरू हुई होगी अभी या होने वाली है, अंतरदशा कोई नई शुरू हुई होगी या होने वाली है. मेनी ऑफ यू आर स्टार्टिंग योर मून अंतरदशा, मून महादशा, कैंसर अंतरदशा, कैंसर महादशा इन द चरा दशा स्कीम, या मून अंतरदशा, मून महादशा इन योर विंशोत्री दशा स्कीम.
तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है राहु की। एंड सम ऑफ यू आर ऑल्सो एंडिंग योर राहु महादशा या राहु अंतरदशा। राहु इल्यूजन्स क्रिएट करता है, तो अभी तक आप इल्यूजन्स में थे। राहु की दशा नेगेटिव इसलिए कही जाती है क्योंकि राहु आपको किसी चीज़ के प्रति या किसी पर्सन के प्रति ऑब्सेस्ड बना देता है और आपका दिमाग हो जाता है बंद। आपको लगता है ये पर्सन मेरे को कब अप्रोच करेगा, ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये चीज़ मेरे को चाहिए ही चाहिए, मतलब ऑब्सेस्ड हो जाता है एक पर्सन, सन की पागल हो जाता है उस चीज़ के लिए। और वो बहुत सारे प्लान्स, उसके बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बट वो प्लान्स और आइडियाज़ प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पाते, वो ख्याली पुलावी रह जाते हैं। क्योंकि जब उनको प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने का समय आता है तो इंसान एक्ट ही नहीं करता है, एक्शन ही नहीं लेता, एक्ट ही नहीं करता है, बोलता ही नहीं है। तो फिर कैसे होगा ना, जब आपके बहुत सारे प्लान्स आइडियाज़ है बट करने को आप कुछ नहीं करते, तो फिर कैसे होगा, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगी। तो ये प्रॉब्लम्स आती है। तो कहीं ना कहीं राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा भी सम ऑफ यू हैव एंडेड या अभी एंड करने ही वाले हो, ऑलरेडी अगेन आप रन करो, जल्द एंड भी करोगे, है ना। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बट व्हाट आई हैव सीन इज दैट यू हैव लर्नड अ लेसन इन लाइफ right now. You have learned it and you have just realized that I need to balance myself, I need to really calm down myself. Many of you are going to start to do yoga, pilates, will join some gym, especially yoga है जो आपके मन को बैलेंस करे। योग का मतलब ही बैलेंस है। तो many of you are going to start to do yoga, meditation, ऑल राइट, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और आप टेम्पटेशंस में नहीं फंसने वाले। आपने जो दृढ़ संकल्प ले लिया, बस ले लिया, अब आप उसको पूरा करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। टेम्पटेशंस में नहीं फंसेंगे। छोटा सा एग्जांपल कि अगर कोई कहता है मैं तो मीठा खाना छोड़ दिया, जलेबी देखी खा ली, कहते हैं कि अब अगले दिन से मीठा खाना बंद करेंगे, पर करेंगे ज़रूर मीठा खाना बंद। तो इसको क्या कहेंगे, ये इंसान टेम्पटेशन में फंस जाता है। दिस इज़ अ वीक मून। जब इंसान एडिक्शंस में फंस जाए, टेम्पटेशंस में फंस जाए, ऐसे इंसान का मून वीक होता है। उसकी कहीं ना कहीं जो विल पावर है वो ज़्यादा पावरफुल होती ही नहीं है। दृढ़ संकल्प दृढ़ रह ही नहीं पाता क्योंकि टेम्पटेशंस में फंस जाता है। अगेन आपके भी चार्ट में पाइल नंबर 3 मून राहु का कंजंक्शन मून केतु कंजंक्शन मून केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या मून राहु कैन बी 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर। मून से 7th में मार्स हो सकता है, मून के आगे राहु, मून के आगे केतु, ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी। पाइल नंबर 3 चेक करना। तो ये शो करता है कि आप दृढ़ संकल्प पे नहीं रह पाते हो, मतलब ऐसे डिग नहीं रह पाते हो, टेम्पटेशन में फंस जाते हो। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स आई सी कि एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा साइकिल अब आपके जीवन में चल पड़ा है जहाँ पर आपने जो डिसाइड कर लिया बस वही फिर आप करेंगे, दूसरे टेम्पटेशंस में नहीं फंसेंगे। आपके लिए एक ऐसा समय शुरू हो रहा है। यूनिवर्स ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि जब तक कोई पर्सन आपको सीधा सीधा आके आई लव यू ना कहे, सीधी सीधी आपसे बात ना करे, तब तक आपको उस पर्सन को भाव नहीं देना चाहिए। बस ये सीधी सी बात है। All right, something more. We have the 5 of Cups card. 5 of Cups here shows me कि पुरानी बातों को गड्ढे में डालो पुरानी बातों को मन से निकालो, ईर्ष्या द्वेष को मन में ना पालो। ऑल राइट, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन पाइल नंबर 2 में भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया था। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हाई IQ वाले कार्ड हैं। आपका मरकरी बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड होगा मलेफिक प्लैनेट से, मतलब मरकरी मार्स का कंजंक्शन, मरकरी राहु का कंजंक्शन। मरकरी मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर। मरकरी राहु कैन बी 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर। मरकरी केतु कैन बी 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर। मरकरी केतु कैन बी कंजंक्ट, जो कि ये शो करता है दैट यू आर अ वेरी हाई IQ पर्सन एंड common sense is definitely not common, but common sense is in you. pile number 3 it is definitely in you, but आप इमोशनल होके जो अपना कवाड़ा करते हैं उसकी हम अगर बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इमोशनल होके अटैच्ड होके लोगों से जो आप अपने जीवन का कीमती समय बर्बाद करते हैं वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही है। पर जब आप दिमाग से खेलते हैं, जब आप दिमाग से चलते हैं, लॉजिक से चलते हैं, इन टच रहते हैं रियलिटी से, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बट अगर आप हवा में बातें सोचेंगे, आप कहीं ना कहीं जैसे ना कोई पर्सन है या कोई चीज़ है,
उस पर्सन के साथ कुछ समय पहले इंटरेक्शन हुआ था, उसी पर्सन के बारे में सोचे जा रहे कि उसने ऐसा कहा था, तो उन्हीं सीन्स को रिपीट करी जा रहे हैं, बार बार रिपीट करी जा रहे हैं उसको, एक माइक्रो लेवल पर मतलब उसका डीप एनालिसिस करने बैठे हैं कि उसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया था, इस तरीके से वो बैठा था, ऐसे उसने करा था। अरे भाई छोड़ो, जब तक वो मुंह से ना कहे कि आप उन्हें पसंद हो नहीं हो, मुंह से जब तक वो ना बोले तब तक जो है यकीन नहीं करना चाहिए आपको उस इंसान का भी, क्योंकि वो इंसान भी एक डेविल काइंड ऑफ अ पर्सन है, आपका समय, आपकी एनर्जी खा रहा है। तो अपने प्रैक्टिकल बनिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, यूर अ हाई IQ पर्सन, तो प्लीज़ गेट बैक टू योर ओरिजिनल सेल्फ, बी दिस पर्सन अगेन। मरकरी जैसे जो मैंने प्लेसमेंट बताई, वो प्लेसमेंट से भी शो करते हैं दैट यू आर अ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग पर्सन, बट आएगा कट्स एंड ब्रेक्स एजुकेशन में आएंगे, ड्रॉप ईयर आएगा एजुकेशन में अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, अगर आप जो हैं कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, यानी जिम में नहीं जाते, एक्सरसाइज नहीं करते, स्पोर्ट्स नहीं खेलते, अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो एजुकेशन में कट्स एंड ब्रेक्स आएंगे। पर अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो एजुकेशन में कट्स एंड ब्रेक्स नहीं आ सकते। पर बचपन खराब हो चुका है, ये दिखता है, क्योंकि मरकरी बचपन भी है। बचपन में यू फेल्ट लाइक एन अडल्ट, यू वर द मैच्योर चाइल्ड, यू फेल्ट लाइक एन अडल्ट, यू डिडंट फेल्ट लाइक अ चाइल्ड, क्योंकि समझ पहले से ही आपको सब कुछ आनी शुरू हो गई थी। Again we see the owl, you have lot of wisdom in you, pile number 3, so tap into that wisdom, don't become an emotional fool। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आप कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों को इनफैक्ट छोड़ भी चुके हो, आपको पता है कि आप उन्हें छोड़ चुके हो, उनसे आश आप छोड़ चुके हो, मे बी थोड़ा 10-15-20% उस पर्सन में, उन चीज़ों में फिर भी अटके हुए हो, बट यू नो कि उनसे कोई आनी जानी नहीं है आपको, तो आप उनको लेट गो कर रहे हैं। जब भी आपको उनका ख्याल आता है तो उस ख्याल पर ही आप फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये दिखता है। With the emotion card, cucumber, absolutely yes, you're quite emotionally attached to some people। ये आपका प्रॉब्लम है पाइल नंबर 3, आप बहुत जल्दी इमोशनली अटैच हो जाते हैं, या बहुत जल्दी इमोशनली अटैच नहीं तो कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों से तो आप इमोशनली अटैच हुए हैं, एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपने फील करा है, एक आई वुड से एक सोलमेट कनेक्शन किसी से आपने फील करा था, बट उसी पर्सन ने आपको दुख दिया है। अगेन मून का एलिमेंट, इमोशनल इम्बैलेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, तो किसी पर आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब इमोशनली मतलब बहुत ट्रस्ट कर लिया था, ट्रस्ट टूट गया, उस पर्सन ने आपका फ़ायदा उठाया, उस पर्सन को भी शायद ये लगे कि पाइल नंबर 3 ने उनका फ़ायदा उठाया, बट नाउ द क्लैरिटी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और क्लैरिटी यही है कि वो पर्सन आपको नहीं अप्रोच करेंगे, आपको जो है उनका कोई एक्शन नहीं आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा। क्लैरिटी ये भी दिखता है कि अब आप चीज़ों को मतलब जो आँखों से दिख रहा है ना, उस पर आप फोकस करोगे। अगर वो आपको मुँह से कोई कन्फर्मेशन ना दे तब तक आप उस पर्सन के ऊपर अपना एनर्जी, इमोशंस, टाइम नहीं इन्वेस्ट करने वाले। एंड दे ऑल्सो नो इट नाउ, दे ऑल्सो नो इट, दे ऑल्सो हैव दिस फीलिंग। तो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग। एंड अगेन बिकॉज वी सी द कैरेट्स है, कैरेट्स धरती के नीचे उगती है, सो इट डज शोज कि कहीं ना कहीं एक डीप कनेक्शन तो है, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको खुशी भी दी है एट सम पॉइंट, बट बहुत सारा दुख भी इवेंचुअली इस पर्सन की वजह से आपको फील हुआ है, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अप्रोच नहीं करते हैं, या जितना आप इसमें इन्वेस्टेड है, इमोशनली इंटरेस्टेड है, उतना कहीं ना कहीं ये पर्सन नहीं है, तो वो दुख भी देता है आपको। एंथुजियाज्म का कार्ड है, वी सी द बटरफ्लाई। नाउ इट्स अ टाइम टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ, नाउ इट्स अ टाइम टू बिकम द बटरफ्लाई। You're going to the next stage of your life, you're starting a new chapter in your life, and in this new chapter things are going to be free flowing, and you're going to meet new people like you, like-minded community से मिलेंगे, and you're going to feel like a butterfly, मतलब you will fly high, you will बेसिकली फ्लाई। पहले आप इतना भारीपन महसूस कर रहे थे कि आप चल भी नहीं पा रहे थे, पर अब आप इतना लाइट महसूस करेंगे कि आप उड़ पाएंगे। उड़ती कला में आप है, चढ़ती भी नहीं, उड़ती कला में आप अब नज़र आ रहे हैं। बहुत खुशी आपके जीवन में आ रही है जो आप काफ़ी समय से नहीं महसूस कर रहे थे। वो खुशी, जो एंथुसियाज्म आप काफ़ी समय से महसूस नहीं कर रहे थे, वो अब महसूस करना आप शुरू करेंगे। वी हैव द ब्यूटी कार्ड, यू विल स्टार्ट टू सी द ब्यूटी ऑफ लाइफ, द ब्यूटी अराउंड यू, द ब्यूटी इन अदर्स, यू आर गोना स्टार्ट
स्टार्ट टू सी दैट। आप अब लोगों में अच्छाई देखेंगे, लिटरली आपका पर्सपेक्टिव लोगों को लेकर, चीज़ों को लेकर बदलता है। आप हर किसी में अब एक अच्छाई देखेंगे, उनकी ब्यूटी देखेंगे, नेगेटिव चीज़ें नहीं देखेंगे, नेचर की ब्यूटी देखेंगे, लाइफ की ब्यूटी देखेंगे। इफ द एक्शन कार्ड, कितने समय से आप स्टेगनेंट थे पाइल नंबर 3, कितने ही समय से यू वर स्टेगनेंट। सम ऑफ यू वर नॉट इवन गेटिंग जॉब्स, वर नॉट हैविंग अ सोर्स ऑफ इनकम, वर ट्राइंग योर बेस्ट टू गेट दैट, बट नहीं हो रहा था। मतलब पर्सनल लाइफ भी, लव लाइफ भी, और फाइनेंशियली करियर वाइज भी यू गाइज वर नॉट डूइंग वेल। वट आई एम सीइंग नाउ इज कि विद इन 3 weeks यू विल स्टार्ट टू सी प्रोग्रेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यू विल सी कि थिंग्स आर गोना नाउ स्टार्ट टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अब आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, आप एक्शन ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं। आपने ठान लिया कोई तो, किसी को तो पहल करनी है, तो मैं पहल करूंगी, आई विल टेक एक्शन। स्पेशली करियर को लेकर आप बड़ा दृढ़ संकल्प आपने रखा हुआ है कि मेरा ये गोल है, और उस गोल को अब आप अचीव करने के लिए एक्शन फाइनली आप ले पा रहे हैं। राहु की दशा खत्म होती है, जुपिटर की दशा, या सम ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इवन योर जुपिटर अंतरदशा, महादशा, या फिर सेजिटेरियस की चरा दशा, सेजिटेरियस की महादशा आप शुरू कर सकते हैं अपने चरा दशा स्कीम में, है ना। तो ये नज़र आ रहा है। अगेन यू आर बिकमिंग वेरी ब्यूटिफुल एज वेल, पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड बाय यू। ऐसा कुछ आप बोल नहीं रहे हो जिससे वो इंस्पायर हो, बट जो आपका एक्शन ही है वही उनको इंस्पायर कर रहा है, आपके कर्म ही उनको इंस्पायर कर रहे हैं। यू आर बिकमिंग beauty with brains, all right, you're becoming more, you're looking more handsome or beautiful. Again you have started to take care of yourself, you are in action। अब आप वेट नहीं कर रहे, आप अब किसी का इंतज़ार बिल्कुल नहीं कर रहे, बस अब आप एक्शन ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को एक सही डायरेक्शन दे रहे हैं। जो काफ़ी समय से ज़िंदगी पटरी से उतरी हुई थी, अब आप उसे ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लेकर आ रहे हैं। यू आर बीइंग वेरी एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एज वेल। वी हैव द नॉर्थ नोड, इट सेज फ्यूचर। आप अपना फ्यूचर के प्रति एफर्ट कर रहे हैं। यू से कि फ्यूचर इज इन माई हैंड्स, जैसा मैं फ्यूचर बनाऊंगी वैसा मेरा फ्यूचर बनेगा। नॉर्थ नोड इज बेसिकली राहु। तो अभी हम राहु की बात भी कर रहे थे कि राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा आपने खत्म करी है। ये चरा दशा में, लेट्स से अगर आपका बर्थ चार्ट में राहु जेमिनी में था और चरा दशा में आप जेमिनी की अंतरदशा रन कर रहे थे, तो वो खत्म होती है। मतलब राहु जिस साइन में था उस साइन की दशा शायद आप रन कर रहे थे, अभी भी कर रहे हो, और अभी कुछ ही दिनों में, हफ्तों में आप वो खत्म करने वाले हो वो दशा। दिस कैन हैपन। अगेन राहु इज अबाउट फ्यूचर, राहु इज ऑल्सो अबाउट ऑब्सेशन। तो मैंने जैसे कहा विद द डेविल एलिमेंट, डेविल भी राहु एलिमेंट है। सो मेनी ऑफ यू, राहु आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मेनी ऑफ यू कैन बी एक्चुअली वर्किंग इन आईटी सेक्टर में, वर्क रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर। राहु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड आपका काम हो सकता है। फॉरेन कंपनीज, फॉरेन पीपल, फॉरेन कंट्री से आपका मनी आ सकता है। राहु रिप्रेजेंट्स योर सोशल मीडिया, इससे रिलेटेड आप काम करेंगे। ऑल राइट। एंड अगेन राहु ऑब्सेशन है, तो किसी चीज़ या किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ऑब्सेस्ड थे, वो ऑब्सेशन खत्म होता है, इल्यूजन्स खत्म होते हैं, रियलिटी को आप देख पाएंगे। अब यू हैव द 10th हाउस, 10th हाउस रिप्रेजेंट्स योर करियर। सो आप करियर में बहुत अच्छे एफर्ट पुट कर रहे हैं, सो वो बहुत वंडरफुल बात है। हाइट्स तक पहुंच जाएंगे अपने करियर में विद इन 3 months, ये हाँ नज़र आ रहा है। करियर में नई शुरुआत, करियर में प्रॉस्पेरिटी होना, नेम फेम मिलना, है ना, ये चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही है। Last but not the least, we have self-reflection card. So it's the time, like universe says that you really need to self-reflect. You really need to you need to get to know yourself कि आप कौन हैं सच में, आप कौन थे और अब आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं. You have to know these things. You have to write these things down on a piece of paper. All right. सेल्फ रिफ्लेक्शन कार्ड ये भी शो करता है कि जो गलतियां आपसे हुई अब आपने वो दोहरानी नहीं है, तो उन गलतियों से सीखना है, तो यू हैव टू सेल्फ रिफ्लेक्ट. सेल्फ रिफ्लेक्शन कार्ड हियर शोज मी कि अब आप अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे, जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ थी उनको ख़त्म करते हैं और जो आपके अंदर स्किल है उसको और पॉलिश करेंगे एंड यू विल शाइन ब्राइट. तो यूनिवर्स कहता है सेल्फ रिफ्लेक्ट एज वेल. तो ये आपके लिए मैसेजेस, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है अभी के लिए पाइल नंबर 3 यूनिवर्स की तरफ से. एंड डेफिनेटली ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स. कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर भी ट्रैवल करेंगे आप जहाँ पर वाटर बॉडी है, लेक है, पॉन्ड है, रिवर है, स्ट्रीम है, ओशन, मतलब एक वाटर बॉडी पास ट्रैवल करेंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. राहु एलिमेंट है तो फॉरेन ट्रैवल्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, ये नज़र आ रहे हैं. अगेन क्यों होंगे? करियर की वजह से होंगे. मून या फिर मून वीनस
एंड आई वुड से मरकरी इनमें से एक प्लांट आपका आत्माकारक प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज होगा. जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन होगा. जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर. ये धर्मादि कर्मादि हो गए. ये शो करता है समहाउ आप अपने करियर में एक प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट बनेंगे. मेनी ऑफ यू आर गोना स्टार्ट टू बाय फ्लावर्स फॉर योर सेल्फ, फ्लावर्स फॉर योर होम, या फ्लावर्स आपको इन जनरल बहुत अच्छे लगेंगे. अगर आप एक बेडशीट खरीदने जाते हो तो फ्लावर्स वाली बेडशीट्स आपको ज़्यादा अच्छी लगे, या फ्लोरल प्रिंट्स मतलब आपको ज़्यादा अच्छे लगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. ऑल राइट, लाइट ब्लू, लाइट पिंक, ये कलर्स आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे. बेबी पिंक, बेबी ब्लू, या इवन हल्का जो ऑरेंज होता है, हल्का ऑरेंज कलर, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा. सो ये कलर जब आपकी आंखों को सुकून देने वाले हैं. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. येलो लाइट आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी एज़ कम्पेयर टू द वाइट लाइट. ये भी ऐसा यहाँ दिख रहा है. पर्पल कलर भी कहीं ना कहीं आप लोगों का फेवरेट बनेगा. मैनी ऑफ यू आर गोना कलर योर हेयर नाउ. मैनी ऑफ यू आर गोना फाइंड आर गोना बाय न्यू क्लोथ्स फॉर योर सेल्फ इन कलर्स के जो कलर्स मैंने बताए, है ना. तो यू आर गोना रीशेप योर सेल्फ, रीबिल्ड योर सेल्फ, ये यहाँ नज़र आ रहा है. अगेन जो आत्माकारक प्लांट हो सकता है कंजंक्ट हो राहु के साथ, या ट्राइन में हो राहु के. सन राहु का कंजंक्शन या मून राहु कंजंक्शन. मून राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, सन राहु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. ये कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी को या आपकी सोच को एक्लिप्स कर रहा है राहु. और कहीं ना कहीं 32 की एज के बाद आपका ट्रू सेल्फ दुनिया के बाहर आता है कि आप कैसे इंसान है, कैसे इंसान नहीं है. वो ट्रू रियलिटी आपकी 32 की एज के बाद सामने आनी शुरू होती है, स्पेशली सन राहु के साथ. क्योंकि सन इज़ योर आइडेंटिटी, राहु इज़ एक्लिप्स, इट वॉज एक्लिप्सिंग योर आइडेंटिटी. 32 के बाद वो आइडेंटिटी आपकी दुनिया के बाहर आनी, दुनिया के सामने आनी शुरू होती है इन अ गुड वे अगेन. ऑलराइट, सो that was pretty much it. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो टॉरस साइन हो गया, लियो साइन हो गया, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे. तो टॉरस में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा. फिर लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. स्कॉर्पियो में विशाखा स्पिल करता है, अनुराधा, ज्येष्ठा. और एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा, सतविशाख, उत्तरा, पूर्व भाद्रपदा. तो इन साइंस नक्षत्र में D1, D12 और D9 वंश चार्ट में आपके जरूर कोनो के प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एंड पाइल नंबर 3, यू गाइज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स. आपको अपने से ज़्यादा कोई और नहीं जानता है, तो ट्रस्ट योर सेल्फ मोर देन एनी वन. ऑल राइट, ट्रस्ट योर सेल्फ मोर. एंड आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, एक और मैसेज आ रहा है कि हर अडल्ट की एडवाइस सही नहीं होती है. कई बार अडल्ट लोग भी, या बहुत बार ही, आई वुड से, नॉट कभी कभी बट कई बार अडल्ट्स भी गलत होते हैं. तो एक अडल्ट की एडवाइस भी गलत हो सकती है. तो यू हैव टू नेविगेट योर पाथ ऑन योर ओन. यू हैव टू डिसाइड हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ. एंड यू आर एन ओल्ड सोल. वो जो एडल्ट हो सकता है वो कोई 50 ईयर ओल्ड का हो सकता है, बट योर सोल हैव लिव्ड सो मेनी लाइफ टाइम्स. तो आपके पास 500-600 सालों का एक्सपीरियंस है, और मे बी उस सोल के पास सिर्फ 200 सालों का एक्सपीरियंस हो. सो एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है, आपको ज़्यादा पता होएगा कि कैसे क्या करना है. तो अपनी समझ से चलो, दूसरों के प्रभाव दबाव में मत आओ. ऑलराइट, दूसरों को अपना गुरु मत बना लो. यू आर द गुरु. यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. यू आर एन ओल्ड सोल. Alright, so that was pretty much it. This was a reading for you, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, it's a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst, and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.